तो चलिए ये आरोप, ये देखिए चिट्ठी भी लिखी गई है। राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने भी लगे, ये सांसद का आरोप है। कोन्याक कह रही है राहुल बहुत पास आकर खड़े हो गए थे। बीजेपी की महिला सांसद का गंभीर आरोप। इस बीच आपको ये लेटर भी दिखा रहे हैं जो लिखा गया है अब अंबेडकर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेकिन ये बात कहीं आगे पहुंच गई, धक्का मुक्की तक ये नौबत आई और बीजेपी सांसद का ये आरोप। पुलिस में बीजेपी की शिकायत भी, प्रताप सारंगी तो अस्पताल में है ही, लेकिन ये चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महिला सांसद की तरफ से आक्रामक रुख अख्तियार किया गया। सांसद फानोन कोन्याक, उन्होंने चिट्ठी लिखी है सभापति जगदीप धनखड़ को, और ये पूरी चिट्ठी आपको हम दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन में। नागालैंड की बीजेपी एमपी हैं, इनका राहुल पर गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी के एमपी कोन्याक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। तमाम सांसद अब मुखर हो रहे हैं और सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी बीच यह आरोप, क्या कहना है सांसद का कान्योक का, आपको सुनवाएंगे, सीधा सुनिए। To bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it is very unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, a lot of people. Then Shri Rahul Gandhi ji just came in front of me, very close proximity. I felt uncomfortable. And then he started shouting at me, which I did not like, because there is a certain way that things should be done, and we should respect each other as honorable members of parliament. But then what he did, what he was shouting, it was in the close proximity, because when people come, we try to give way. But there were so many of us standing and protesting, there was no space to move actually. So what happened today is very sad. I feel disheartened because this is not the way that people should treat each other. And as an ST member and as a lady member, I really feel bad. Of course, if necessary, maybe I can protect myself, but then that would seem very unbecoming, unseemly. So what happened today was really bad. He came this close that you got really uncomfortable? I felt very uncomfortable, and he shouted at me, but we should not shout at each other. He shouted at you? He just shouted, he was saying something, and we shouldn't be saying that. So he was shouting at me, which I really felt uncomfortable about. So you're going to raise this matter before? I have submitted a complaint to Honorable Chairman Rajya Sabha seeking his protection on this matter. Yes. Okay. So what was he shouting? What was he saying? I don't know what exactly he was shouting, but then he was just shouting at me. And because everyone was shouting like slogans, and also I couldn't get exactly what he was saying. But then somewhat like, you cannot block me, something like that. But I was not blocking him. It was like something, he was like as he was charging me sort of thing. But I was not doing anything to him because we were standing here. What happens is they also have their protests. Then security people, personal cordon off a passage for them. So when they have their protests, we also use that passage and go. Right. And when we were protesting, they just came in pushing in a group, and we could not make out what was what. Thank you. Thank you. So BJP MP submitted a complaint to the chair, where she has alleged that Rahul Gandhi came in a very close proximity to her while she was protesting here at the Makar Dwar. तो भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड से सांसद हैं कोन्याक, और इस बीच राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी कहा है कि महिला सांसद मेरे पास रोते हुए आई थी। I have received a communication from Koन्याक, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member parliament. I am looking into it. सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सदन इस घटना
की कड़े शब्दों में निंदा करता है। और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। मौसमी सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मौसमी, लगातार आरोप के केंद्र में अब राहुल गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मिनिस्टर्स और बीजेपी सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। खासकर नागालैंड से एमपी जो महिला हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया, राहुल गांधी को लेकर निशाने पर लिया है। बिल्कुल, देखिए अभी इससे पहले तो आशुतोष दो सांसदों ने ये आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने उनके साथ धक्का मुक्की की और जिसको लेकर बीजेपी एफआईआर भी दर्ज कराने की पूरी कवायद में है। पर दूसरी ओर एक ये नया आरोप आया है जो बीजेपी की सांसद नागालैंड से है राज्यसभा में। उन्होंने राज्यसभा में बोला कि जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखकर चेयरमैन को अवगत कराया है और बताया गया कि चेयरमैन को उन्होंने ब्रीफ भी किया कि किस तरह से उनके चेंबर में जाके कि किस तरह से राहुल गांधी ने उनके साथ कथित तौर पे अभद्रता की। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी भीतर जाना चाहते थे, उनको हमने भी साइड से जगह भी दी, लेकिन वो बहुत ही उनकी बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव थी। और एक महिला सांसद होते हुए जो उन्होंने पत्र में लिखा है, मुझे जो है थोड़ा सा मैं अनसेटल हो गई और मुझे ये शिकायत करनी पड़ी है बहुत दुख के साथ। मैं सांसद हूं और मैं एसटी कम्युनिटी की शेड्यूल्ड ट्राइब्स के समुदाय से आती हूं और इस तरह का बर्ताव मेरे साथ हुआ। ये शिकायत उन्होंने राज्यसभा चेयरमैन को दी है। इस मसले को संसद में भी उठाया गया। लेकिन मौसमी, डिफेंड भी तो किया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, खड़गे, मतलब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी सामने आ रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए पूरी बात ये है आशुतोष की बिल्कुल ऐसे आर पार की लड़ाई नजर आ रही थी वहां मकर द्वार पे और नारेबाजी जो है जोर जोर से होने लगी। दोनों तरफ से जो है नारेबाजी हो रही थी। विपक्ष के भी बहुत सारे बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैठ जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसका प्रोटेक्शन सीख करके। We strongly condemn it. Just a minute. We strongly condemn it because she is an honorable lady member elected from the northeastern region. The incident what happened today, this is insult to the democracy, this is insult to the elected member of parliament, and this is insult to the people of northeastern region, because she is a lady member from the northeastern region, elected honorable member from the northeastern region. और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी राज्यसभा में राहुल गांधी पर हमले की बौछार कर दी है। सुनवाएंगे किरण रिजिजू को। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज करना न किया, हमारा लेडी सांसद को ढकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के दो और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से दो सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। हमारे पास संख्या है,
जनता पार्टी के सभी मंत्री और सभी नेता इस वक्त हमलावर हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पर। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी राज्यसभा में राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। इस तरीके से संसद में संविधान पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसके कारण ये बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। और आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और ये प्रिविलेज का विषय है। तो ये आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से लगातार तमाम मंत्री, तमाम जो सांसद हैं, मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी निशाने पर हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि धक्का मुक्की उन्होंने की है। और इस बीच एक बार जब यह घटनाक्रम घटा, वहां पर प्रताप सरंगी नीचे बैठे, तो क्या हुआ जब राहुल गांधी की एंट्री हुई, किसने क्या कहा, सुनिए जरा। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करके करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडा करके करते हो? बीजेपी के और तमाम सांसद वो आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी आए, राहुल गांधी पर हमलों की बौछार हो गई। तमाम सवाल कि आपको देखना चाहिए था, सुनिए एक बार फिर से। शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करके करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा तो राहुल गांधी पर जब सवाल खड़े किए गए तो राहुल गांधी ये कहते हुए वहां से चले गए कि इन्होंने धक्का दिया। दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच धक्का मुक्की मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने बीजेपी पर धक्का मुक्की और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया, नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं।
इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले।